direction about the national and local politics and trying to make sense of the mess that Pakistan is currently in. So without further ado, Amar, over to you. We are going to hopefully hear from you about the overview on what is happening in Pakistan, where does your party stand, what is the mission and agenda, what are the next steps for Haqooq KHALQ party, and then we'll follow up with a Q&A session from the audience. Thank you so much, Raza. Thank you so much, Dr. Heather. Thank you. It's an honor to be here among at least 3 generations of activists, and it's always good to remember that whenever you're doing work, you're always part of a tradition. There's always been people before you who've worked, who have organized, who have felt the pain of their people, who have sacrificed for their people, and we always insist that we are part of this larger tradition of activists, of patriots who actually sacrificed for Pakistan. And many of them are here in this room today. And I think we all feel a palpable sense of sorrow and pain about what's happening in Pakistan at the moment. And I'll talk about it a bit during my presentation. But I did want to start my presentation by introducing some of the work that we've done in Lahore over the past 3-4 months. We have started a movement in order to present an alternative to the people of Pakistan in the current disorientation that we see. And I thought after these 5-6 minutes of brief videos, then perhaps I can restart my presentation, and I hope to speak for about 20 minutes. If you're ready, Tabby. By the way, I insisted we not put this picture because it looks a little pretentious to start our presentation. We're already dealing with the narcissist in Pakistan. We prefer your version of narcissist. Okay. I should do it without this. Yes. Okay. No, do you want me to play the first video? Yeah. So the first video is a video of our election campaign. I was supposed to contest in the Punjab Assembly elections, which was supposed to happen on the 30th of April. Now we don't know when the elections will take place, but we did manage to generate a lot of excitement in this constituency, and I'll talk about it in a bit right after the campaign. But this is the video of our campaign when we launched our campaign in January. For some reason, it's showing up here. Oh, if you would put it to... showing over there. This is the video, and that's the PowerPoint. So the video is not showing up right there. It's on YouTube. I'm not a tech person, I'm just trying to help. It's not showing there. So it's actually the presentation. Why don't we just play on the big computer, Gabby? Yeah. Okay. Now it's good.
we'll just send it on WhatsApp to all friends. है ना? Yeah. When you edit the program, That's और हमें यकीन है कि अवामी ताकत के बलबूते पर पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा सियासी मुतबादिल कायम किया जाए जो कुर्सी की लड़ाई में दिलचस्पी ना लेता हो, बल्कि अवामी हकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो। साफ पानी के हक के लिए, तालीम के हक के लिए, रोजगार के हक के लिए और सेहत के हक के लिए। इसी मंशूर के साथ हम PP 159 में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें यकीन है कि अवामी ताकत के बलबूते पर हम जीत सकते हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम एक नई तारीख रकम कर सकते हैं और एक मुतबादिल कुव्वत को पाकिस्तानी सियासत में मुतारिफ करा सकते हैं। आए हमारा साथ। I think I'll just continue with the tapping. Yes. Well, thank you so much. You go on video speaking, but we can probably go in the edited one. So I think we're at walking time now. So You don't want to. no. Dire, as you can see on the TV channels. There is a crackdown underway, and the choices that we're being given is either a populist authoritarianism of Imran Khan or military authoritarianism. And these are the choices that are, in a way, exhausting the other possibilities that exist in Pakistan at the moment. We often say that the crisis that we see on TV is merely a symptom of a deeper crisis. It's not Imran Khan who's the problem, nor is it PDM. One can say it's not even just the military either. It is the entire system that is crumbling. The state structure, our political economy, our state has turned into a vessel for parasites in Pakistan. According to one report of the UNDP, the amount of subsidies being given to the elites every year in Pakistan, in this extremely poor country, amount to $17.4 billion. यानी आप समझ लें 2700 अरब रुपए की मरात मिल रही है अशराफियों को. So this is a welfare state for the rich. It's socialism for the rich. And if you look at that report, I would recommend कि आप लोग वो पढ़ें. Dr. Hafiz Pasha की report है, who's a senior economist. It's basically subsidies being given to the military. It's subsidies being given to landlords. It's subsidies being given to the real estate mafia, to exporter mafia, and to corporate sector. And none of these sectors are productive. Subsidize अगर आपने किसी चीज को करना है तो उसका कोई शर्त होनी चाहिए ना that you will actually increase productivity of our people, of our country. You will increase our exports, you will increase our foreign exchange. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. These are rackets that exist in different markets. And no matter who comes to power, ये rackets जो हैं, ये जो mafias हैं, they squeeze the capacity of the state in order to enrich themselves. So एक तो आपकी economy की जो basis है, it is unproductive and parasitic. The second thing is कि ये जो सारा system चल रहा था माजी में, वो चल रहा था इस बुनियाद पे कि हम lucky होते थे कि कोई ना कोई जंग हमारे एरिया में लग जाती. So because we are a frontier state, we would sell out our geostrategic location in order to seek grants from global superpowers, mostly from the US. Saudi हो जाए, US हो जाए, regional players हो जाए. उसके अंदर, despite this extremely decadent economic model, we would be able to sustain ourselves by gaining financial aid from abroad. ये अयूब ने भी किया, ये ज़िया ने भी किया, ये मुशर्रफ ने भी किया.
वो कभी जिहाद के नाम पे होता है, कभी जिहाद के खिलाफ जिहाद कर देते हैं, wherever the dollars are coming from, उसकी बेस पे काम होता है. So we are a militarized state, a frontier militarized state, and अभी बदकिस्मती से कोई ऐसी जंग लग रही नहीं है जिसमें हमारी ज़रूरत उस तरह की पड़ी हो जिसके ज़रिए we could make, our state could make money. We feel, our elites feel isolated, our generals feel isolated, they feel betrayed. इतनी बड़ी मशीनरी है जिसको पालना है, this monstrous state with this security repressive apparatus, लेकिन उसके लिए कोई inflows अब नहीं है पैसे. So that's a second disaster that we're facing. The third is, which is not talked about a lot, and I think it's climate change, which is a huge problem for Pakistan. जो floods आए हैं, they have devastated our political economy. हमने जाके डीजी खान में और साउथ पंजाब में काफ़ी काम किया जब पिछले साल floods आए. Increasingly हमारे जो crops हैं वो तबाह हो रहे हैं, cotton crop तबाह हो चुकी है, हमारी जो ये housing societies जिस तरह से फैल रही हैं, the way they're destroying agricultural land, it's increasing food insecurity in the region. हमारी जो vulnerability है to climate shocks, that's immense, and we don't have enough resources or any kind of even planning or even a discourse जिसके इर्द गिर्द हम अपने आप को organize कर सकें for this huge challenge that we're facing. आप ये यकीन करें कि अगस्त में फ्लड्स आए हैं, जुलाई अगस्त में, अक्टूबर के बाद फ्लड्स के बारे में कोई हेडलाइन नहीं है. दिस इज इनक्रेडिबल. अगर आप ये देखें कि द काइंड ऑफ डिस्पोजेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स कि सारी जिंदगियां लोग की तबाह हो गई, मलेरिया आ गया, दिसंबर जनवरी फरवरी लोग बहुत आज तक बहुत परेशान हैं, लेकिन सारी जो डिस्कशन है वो मोनोपोलाइज हो गई इस पे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, ये केस लगेगा नहीं लगेगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, पंजाब असेंबली बचेगी नहीं बचेगी. इन अदर वर्ड्स, देयर इज अ कंप्लीट गैप बिटवीन द सोशल क्राइसिस एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस. सो जो हम टीवी पे देख रहे हैं और जो सोसाइटी में हो रहा है उसके दरमियान जो गैप है बिटवीन द इमेज एंड द रियल, इट इज वाइडनिंग. तो तीन जो क्राइसिस मुझे बड़े लगते हैं, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्राइसिस, एक मिलिटरिज्म का क्राइसिस और एक क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी. आई थिंक ये तीन चीज़ें मिलके प्रॉब्लम्स हमारे लिए मज़ीद बढ़ा रही हैं. और इस स्टेट के ऊपर जब इमरान खान पावर में था, आपको याद है, इसी मशीनरी को चला रहा था वो, जो कि वेसल है फॉर एलीट्स, जिसको वो इस्तेमाल कर रही हैं अपनी मराद के लिए, जिसमें मिलिट्री का रोल बहुत ज़्यादा है, जिसमें क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी हो रही है. इमरान खान in April 2022 was an extremely unpopular figure in Pakistan. 13 हुए थे बाई इलेक्शंस 2021 से 2022 में, उसमें से 11 इमरान खान हारा, पीटीआई. फिर पीडीएम आ गई, तो विद इन 6 months पीडीएम became extremely unpopular. और वो जो जुलाई में इलेक्शंस हुए उसमें 20 में से 17 सीटें पंजाब से पीडीएम आ गई. और मेरा मानना है कि इस स्टेट स्ट्रक्चर के ऊपर आप नेल्सन मंडेला को भी बिठा देंगे तो वो 6 महीने के अंदर The problem is a system that is collapsing very, very rapidly, and there has to come a point where we start talking about systemic structural issues with Pakistan's political economy. Not focus too much on individuals. नवाज शरीफ के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान ईमानदार है नहीं है, नार्सिसिस्ट है नहीं है, बिलावल जो है वो वाकई लगता है बेनज़ीर का वारिस है नहीं. I mean, this is political gossip जिसके अंदर हमें फंसाया गया है. The issues are bigger than that. And one thing that we are noticing is that over the next 5-10 years, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस आने वाले हैं. एंड दैट्स फॉर 2-3 reasons. One, the absolute collapse of the legitimacy of political parties. पीडीएम वाले, हम जब ऑपोजिशन में थे, स्टूडेंट मार्च, थोड़ा सा अपने भी हम काम के बारे में बताएंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर केसेस होते थे, हमें उठाते थे, बिलावल, मरियम नवाज सब हमारे साथ इन टच होते थे.
एक इस हद तक कि बिलावल हमारे घर भी आए थे। मरियम नवाज एक कॉल के ऊपर बलोच स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक कॉल के ऊपर सुबह 9 बजे वो धरने में आ गई थी पंजाब असम्बली के साथ। और जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उनके किसी छोटे लेवल पीए से भी बात करना पॉसिबल नहीं, किसी के लिए, माफ के हम करना चाहते हैं कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। एंड उस वक्त जब बलोचों के लिए निकली थी मरियम नवाज, उन्होंने पूरी उनकी तकरीर मिलिट्री के खिलाफ की, और कल उन्होंने पाक फौज की शान में रैली निकाली। सो दिस शिफ्ट दैट हैपेंस, उन्होंने आसिम मुनीर का उनका हाफिज भी है वो माशाल्लाह, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया कि हाँ दीन दुनिया दोनों में सुकून है। यही खान साहब का था कि उस वक्त ही वो सपोर्टिंग द मिलिट्री। अभी उनकी आज भी कोई वीडियो ऑडियो आई हुई थी मैक्सिम वॉटर्स के साथ, where he's asking the US to condemn the Pakistani military. In other words, it appears as if it's become very clear that political parties, despite what has happened to them over the past few decades, they're not learning their lessons and they're not consistent even today. आज भी वो consistently अपनी पोजीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बेगानगी फैल गई है हम लोगों को। दूसरी तरफ जो मिलिट्री एक ग्लू थी हमारे लिए, despite the fact कि naturally हम जैसे लोग उनको ऊपर बहुत criticism करते थे, but they had created conditions in which it was impossible to imagine Pakistan without the military. उन्होंने खुद ही ऐसी conditions create की। इस वक्त गली गली महल्ले महल्ले में मिलिट्री का उस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है जो हम भी नहीं मानते। व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आम लोग बिल्कुल वर्किंग क्लास लोग, बुजुर्ग, ख़वातीन, लड़के लड़कियां वो मजाक उड़ा रहे। It means that not only has the legitimacy of political parties collapsed, but also the legitimacy of the military has collapsed in an unprecedented way. That's the qualitative difference between what they are saying and what we are saying. Yeah. Because they are abusing the army because they are Angry. against Iran. They're not saying that, I don't know, you're on ground, you might say differently, but we used to say that the army was, as an institution, was involved in the politics of Pakistan, and they're disrupting democracy. At the time, people are cursing the generals because somehow they have kicked out the hero. And you know, there are different factors why people end up disliking an institution. कोई भुट्टो की वजह से, कोई नवाज शरीफ की वजह से, कोई TLP की वजह से, कोई तालिबान की वजह से, कोई इमरान खान की वजह से। But the military has managed to alienate everyone. ये current leadership की खूबसूरती है military। There is nobody who जो दिल से इस वक्त support कर। So there is no actual intellectual discourse in favor of the military. जो है वो पोका इस किस्म का है, जिसका मैंने कल गुजरात में जो मैंने रैली निकाली है, वो जो उसका मजाक मूली वाले खुद उड़ा है। So there's something, I think there's a collapse that's happened, which means that there's a vacuum that is opening up, which is unprecedented. बहुत अरसे बाद एक बड़ा vacuum आ रहा है, and there is a danger if we are to think, if we are to be slightly negative, कि it gives an opening to the right-wing forces as well. Absolutely. It's a big opening because they're well organized, they're well oiled. उनकी कोई उस तरह की popularity, they don't have popular figures, but उनके पास मदरसे हैं, उनके पास मस्जिदें हैं, उनके पास schools हैं, उनके पास अस्पताल हैं, and that gives them a unique position to intervene in the current crisis. आज भी तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, अब मौलाना फजल रहमान is someone जिनका अब बहुत high stature नहीं रहा in terms of respectability, but if you guys remember जो Supreme Court के सामने जितने लोगों को उन्होंने निकाल दिया, it's not because उनकी कॉल पे लोग निकल आते हैं आम लोग, it's because they have an infrastructure जिसको वो कभी भी mobilize कर सकते हैं। मदरसे के लोगों को ले आए और वो हजारों की तादाद में थे, if you remember अभी मेरे को 4 दिन पहले उन्होंने किया। But it also on the flip side gives an opening to progressive forces, क्योंकि जो बातें हम बहुत अरसे से कर रहे थे उसकी ऑडियंस जो है वो अब मौजूद है। ट्विटर पे इट्स फनी कि अब जो सबसे ज़्यादा हमें रीट्वीट करते हैं वो PTI के सपोर्टर्स करते हैं।
राइट लाइक जो कि जिनको टास्क दिया जाता था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी उनकी टीम्स में थे पीटीआई की सोशल मीडिया में, कह रहे सर हमें बहुत बुरा लगता है कि आपके लिए टास्क दिया जाता है कि ट्रोल करना है इसको इस बात, और आज जो टास्क उनको दिया जाता है कि इसकी चीज़ों को रीट्वीट करें. We are in a position to give intellectual leadership, and we are in a position to give, in the long run, not in the short run, to give a political alternative. And अभी वो हैदर भाई से भी बात हो रही थी, जो हमारा एक proposal है on how we've been working, is that we must go slow and slowly build our base. क्योंकि ये मेहनत का काम है, सब्र आजमा काम है, इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि एकदम से हम जाएंगे और सेलिब्रिटी बन जाएंगे. It should be about working with the people, learning from the people, building a mass base and moving forward. And उसमें पिछले 4-5 सालों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं which gives us a lot of hope. एक स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुआ था, आप लोगों में शायद कुछ लोगों को पता हो, 2019 में पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स निकले डिमांडिंग द राइट टू यूनियनाइज, स्टूडेंट यूनियंस के राइट पे. उसमें नए ग्रुप्स बने, स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनी, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव बने, एनएसएफ का रिवाइवल हुआ, और इस तरह के कई आपको चीज़ें मिलेंगी जिसमें पीपल बिकेम इंटरेस्टेड, यंग पीपल बिकेम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग उनको अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज वो उन इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे बात कर रहे ही नहीं थे जिन इश्यूज पे हम लोग बात कर रहे थे. सो फॉर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम देयर वाज एन ऑडियंस फॉर व्हाट वी वर सेइंग. इसी तरह इसी दौरान गुलालाई से कल बात हुई थी, इनके एरिया में जो पीटीएम की मूवमेंट चली, जिसमें हम भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे. अगेन जो ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट पार्टीज थी पश्तूनों की, वो शायद ये मूवमेंट ना चला था. It eventually needed a 26-year-old guy, Manzoor Pashtun, जिसने हजारों लाखों लोगों को मोबिलाइज किया across Pakistan and across the diaspora. और मैंने उनके जलसे देखे हैं, उनके साथ काम किए हैं, उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाया है. They have really managed to transform the minds of young Pashtuns. और उनको एंटी तालिबान सेंटिमेंट जितना इस वक्त पश्तूनों में है, ना सिर्फ सेंटिमेंट, बल्कि अगर आपने देखा हो जब दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ स्वात में 2 महीने पहले, within 48 hours thousands of people were on the streets of Swat, और उन्होंने नारेबाजी, ना सिर्फ खतरनाक नारे मिलिट्री के बारे में, मगर जो तालिबान के बारे में उन्होंने नारे लगाए, वो हमें से कोई लाहौर में भी शायद न लगा. इतना उनकी क्लैरिटी थी पॉलिटिकल विजन की कि तालिबान क्या है. और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरे उसमें अपने स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे. वज़ीरिस्तान के अंदर ईद के ऊपर एक मौलवी ने एग्जांपल दी कि ईद की नमाज के दौरान दीजिए हम तालिबान को वेलकम करते हैं. अफगानिस्तान में उन्होंने औरतों का जो स्कूल बंद कर दिया, उसने जैसे ही ये कहा, which means कि ये वो एवेन्यूज है जिसके ऊपर ना नून लीग रिस्क लेती है, ना पीपल्स पार्टी लेती है, ना पीटीआई का बिल्कुल. सो that's one opportunity. इसी तरह कच्ची बागियों के काम हो रहे हैं जहाँ पे AWP के हमारे साथी हैं, कराची में भी, लाहौर, इस्लामाबाद में भी, who are working on the ground, who are doing some fantastic work. तैमूर रहमान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस्ताद हैं, who has a big social media presence now, who is educating a lot of young people, and a lot of young people are listening to him. और हमारा काम है फैसलाबाद में, लाहौर में, पंजाब में हम ज़्यादा कर रहे हैं, पाकपतनटोबा ठीक से, उसमें we've noticed that people are responding to everyday issues in ways that they never did. For example, जिस हल्के में हम काम कर रहे हैं, जहाँ की अभी आपने वीडियो देखी, यहाँ पे पीने का पानी और गटर का पानी आपस में मिक्स है. Now it's an issue that is not an issue that you can use for political gossip. Headline बनाने के लिए अच्छा नहीं है,
बट इस इशू के ऊपर जो हमने मोबिलाइजेशन की हमको वीडियोस दिखाना चाह रहे थे, आई थिंक उसमें मसला आ रहा है, बट hundreds of people, particularly women, have joined us in that campaign for clean water. अभी पिछले दिनों डीसी ऑफिस हमने अप्रैल में ऑक्यूपाई कर दिया था। लाहौर का डीसी जो है वो बहुत ही खौफनाक किस्म का ऑफिस समझा जाता है, लोग रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर लड़ के अंदर चले गए कि यार अगर आप 75 सालों में हमें पानी भी साफ नहीं दे सकते तो फिर वी डोंट ओwe यू एनीथिंग। आपने जिक्र किया गंदा पानी, पीने का पानी, इस स्ट्रगल से ही बाहर नहीं निकले। वो जो वीडियो आपने दिखाई, पीपल की वर वॉकिंग में, वो लोग हैं जिनको ना पानी अभी तक पहुँचा, ना जो है इनका जो है गंदा पानी ड्रेन प्रॉपर तरीके से हुआ। टुडे इन मॉर्निंग सेशन आई अटेंडेड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम। वन ऑफ द स्पीकर was a professor of medicine, and he was presenting a lecture on hepatitis. What he gave the figure is, if Pakistan is now on the top of every other nation in the world, having the highest number of hepatitis, we have crossed India and China. And then he commented, and I will quote, कहने लगे कि अगर जो है तीन जहाज ये हमारे वर्दी वालों के पास ना पहुंचे तो उन पैसों से पूरा हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान से एलिमिनेट किया जाए। दिस इज व्हाट वी नीड कि मासेस तक जो है कैसे कोई चीज़ पहुंचाई जाए। सब कुछ है, वहाँ पर पैसा है, लेकिन वो डायरेक्शन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है मासेस के लिए। Absolutely. And you know, you're absolutely right. और हेपेटाइटिस वाले जो हमें डॉक्टर्स हम तो अभी शायद हैदर भाई थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में, लेकिन जो We have a video for this water wall. Do you want? Shall we show it? sure have it. So can you make Shan host in the? He's an attendee. He can share the screen. Right. तो ये पानी वाला मसला बहुत सिवियर मसला है, एंड हेपेटाइटिस तो हमारी अपनी कंस्टिट्यूंसी में भरा है ना, ज़ाहिर पानी की वजह से उसमें बहुत है, फिर बाकी भी गन की वजह से टाइफॉइड बहुत ज़्यादा है। जब मैं बाहर के अपने दोस्तों से बात करता है तो टाइफॉइड का सुन के कहते हैं जो चार्ल्स डिकेंस की उसमें आज होता था, तो मैंने कहा नहीं वो अभी भी होता है पर हर जगह होता है। And this is happening, and you're absolutely right. The question is not one of expertise. Expertise भी है, resources भी हैं. The question is one of political will and the distribution of resources. जब distribution resources के ये होंगे कि आपने हर retired general को बड़े-बड़े plot देने हैं, जिसके लिए आपको housing societies बनानी है. That will take away all the surplus of your nation. और अगर वो नहीं है surplus आपके पास, तो eventually you will be forced to take loans. और ये जो हमारी economic हमारा model है, अगर मैं थोड़ा सा उस पर आप इजाज़त दें बात करने का, वो exactly ये है. Vulture capitalism, where you exploit, use the state to exploit all your resources. फिर आप वो अयाशियाँ जो हैं चंद लोग की, उनको आप sustain करते हो through foreign loans. Eventually you run out of money. The IMF wants the money back. What you do is, वो कहते हैं अब आप टैक्स लगाओ। अब आपने अपने ऊपर तो टैक्स लगाना नहीं। टैक्स किस पे आपने लगाना है? आपने लगाना है, आपने एजुकेशन बजट कट करना है, आपने महंगाई करनी है, घी महंगा कर देना है, पेट्रोल महंगा कर देना है, आपने आटा महंगा कर देना है, बिजली महंगी कर देनी है। सो इवेंचुअली मैं पिछले दिनों एक अपने कंस्टिट्यूंसी में एक खातून से मिला, तो उनका आंटी थी, तो का मेरा बंदा जो है उसको हार्ट का मसला है और बेटी का जो है वो जहेज़ का मसला है, शादी हुई। तो मैं कहा आंटी कोई बात नहीं, वो जहेज़ वाला भी कर देंगे, तो अंकल का अगर मसला है तो पहले हम उनको ले जाते हैं अस्पताल में, तो ये बाद में करते हैं। और कर देंगे, आप पहले बेटी का कर दें, तो हम दोनों तो वैसे भी मर जाए। जो डेस्परेट सिचुएशन है वो ये है कि पीपल really have to make these choices on a daily basis.
husband को बचाऊं, बीवी को बचाऊं, बेटे को बचाऊं, माँ को बचाऊं, बाप को. That's how extreme the crisis is, especially with the current bout of inflation, which is up to 42%, जिसमें खाने की भी inflation है. और ये जो हमारे schools हैं, when I was teaching at Punjab University, मैं शाम के वक्त इस एरिया में पढ़ाता था एक दो schools में. उधर आम जो बच्चे हैं, बहुत ही लाइट बच्चे, कोविड आया, about 70% of kids left school. और बहुत लाइट बच्चे जिनका मतलब किसी को उन्होंने उस पर लगा दिया, कारखाने में लगा दिया, किसी को बाइक की दुकान पे लगा दिया, किसी को परचून की दुकान पे लगा दिया. Young people, hundreds of young people were denied a future and are still being denied a future, so that a tiny elite can continue to party. एक छोटी अशाफिया की अयाशियों के लिए आप लाखों करोड़ों बच्चों का मुस्तकबिल कुर्बान करते हैं. This is the nature of the political economy. और हम हर तकरीर में कहते हैं कि अगर हम अपने मंशूर को एक लाइन में बयान करें तो यही होगा कि इस बार कुर्बानी गरीब का बच्चा ना दे, बल्कि जर्नैलों के बच्चे दें, जागीरदारों के बच्चे दें, और उनकी कुर्बानी जो है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी कि if you come to, कैसे क्यों तक so this is in these conditions, I think after a very long time one has to now ask these socio-economic questions. सर आप कुर्बानी की बात कर रहे थे, वो प्लीज. जी, मैं कहता था कि ये जो कुर्बानी बच्चे दे रहे हैं, उसके बजाय गरीबों के बच्चों की तो कुर्बानी यही है कि they can't eat enough, they can't go to school. उसके बजाय अगर आप यही बर्डन थोड़ा सा अमीरों पे लगा दो, उनकी कुर्बानी तो मैक्सिमम ये होगी, they going to America या पेरिस 5 times a year, 2 दफा चले जाएंगे, और वो ये वाली कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे. They will actually punish the poor for loans that were never spent on them. So अगर आप उन एरियाज में जाएं, वहाँ पे जहाँ पे पानी साफ नहीं है, वहाँ पे क्या डॉलर्स लगेंगे. So to conclude, and then we'll go for a discussion, I think, yeah. I think there is a very serious opening despite the crisis. There are enough people who are committed. ये 4 stages हैं of rebuilding the left. I think the first is building a nucleus. I think we are almost through that stage. There are enough progressive people now, young progressive people in different parts. कुछ हकूक़ ख़ल्क़ पार्टी के साथ हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, कुछ दूसरी पार्टीज के साथ हैं. मैं यही कहना चाह रहा था कि आप कंक्लूजन से पहले थोड़ा सा एक लैंडस्केप भी दे दें बाकी पार्टीज और मूवमेंट्स के बारे में, और फिर जो आपका जो काम है और हल्के के अंदर आपने प्रॉब्लम्स तो बता दी हैं, ऑर्गेनाइजिंग की लेवल जो है वो भी बता दें, और आपके चैलेंजेस क्या हैं. आई थिंक दैट्स ऑल्सो ओपनिंग, तो आपने एक्सप्लेन कर दी है. ये भी हमारे जो लोग जमा हुए उनको पता लगे कि हर्डल्स क्या क्या हैं जो आप फेस करें ऑन डे टू डे बेसिस, लॉजिस्टिकली, रिसोर्सेज वाइज, एटसेट्रा. मेरा एक है कि आप अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ें, उसको आप ये एक्सपीरियंस कि हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर ये है और हम इस तरह आगे बढ़ें. तो इस वक्त जो मेन चैलेंज है, जैसे मैंने कहा कि लोग, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग. अभी शायद ये वीडियो चल जाए, एक हमने पिछले दिनों जलसा किया है, या मे बी राइट एट द एंड, ये जलसा किया हमने अब्दुल रहमान शहीद, वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेबर लीडर इन द एरिया दैट वी आर वर्किंग इन, और सैकड़ों लोग मौजूद थे. तैमूर रहमान थे, ही वाज देयर एज वेल. People are naturally responding to the things we're saying because ये इस वक्त उनको उनके issues हैं. The problem is that the stakes have increased a lot in elections. अगर आपने election लड़ना है
So it's not just about ideology or about organizing. It's also about financial resources and institutions. क्योंकि जो हमारे मुकाबले में सारी कैंडिडेट्स हैं, जो मेरे हल्के में भी दो लोग हैं, नून लीग के और पीटीआई के जो हैं कैंडिडेट्स, दोनों बहुत बड़े लैंडमार्क। सो वो जो रिसोर्सेज दे, वो 5 साल से हल्के में नहीं आए। और उनका एक जानने वाला तो मुझे मिला, तो उनका प्रोफेसर आप बेवकूफ़ हैं, आप ये लगे हुए हैं ग्राउंड पे, ऐसे नहीं होती पॉलिटिक्स, आखिरी 5 हफ्तों में जाना होता है। और आखिरी 5 हफ्तों में जाएं, पैसा लेकर जाएं और वोट खरीदें, घी के डब्बे दें, आटे दें, सड़कें बनवा दें, 10 से 15 करोड़ रुपया कम से कम लगता है, एंड द इलेक्शन इज कैंडिड। तो उनका क्लेम नेचुरली है कि जो अभी आपके साथ लोग आ रहे हैं, जब पैसा आएगा वो नहीं आएगा। अब नेचुरली टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस कुड बी ट्रू, पर उसको तोड़ने के 2 ही तरीके हैं। पैसे में हम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि हर हमारा लेफ्ट का कैंडिडेट 10 से 15 करोड़ रुपए लगाएगा, तो कोई पार्टी लेफ्ट की पार्टी रहेगी, वो फिर कोई और ही पार्टी होगी जिसके पास इतना पैसा हो। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक जिसका मैंने कहा न्यूक्लियस हमारा हो, स्ट्रॉन्ग केडर जो कि एक्टिव हो एट एनी पॉइंट इन टाइम। दूसरा, हमारे पास एक मूवमेंट हो, जैसे पीटीएम की, जैसे हम इधर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके एक मूवमेंट के अंदर एक खास तरह का लगाव होता है, पैशन होता है, सॉलिडारिटी होती है, जिससे लोग जुड़ जाते हैं। और तीसरा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो ये पार्टीज करती हैं। नून लीग का हमारे हल्के में, वो हमेशा नून लीग वहाँ से जीतती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, which means उनके ऑफिसेज नहीं। उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि आखिरी टाइम पे आके हम पैसा लगा के करेंगे। हम उसका तोड़ जो कर सकते हैं वो यही है कि हमारे पास ऑफिसेज हों और हमारे पास सर्विस डिलीवरी। द लेफ्ट शुड बी एबल टू हैव इंस्टीट्यूशंस जो कि कोई ना कोई इलाके में लोगों की मदद करें, जिसमें हैदर भाई ने हमें बहुत मदद की है, जफर भाई ने भी बहुत मदद की है, और भी तो लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट दी है। जो अभी हम सेटअप करने लगे हैं खल्क क्लिनिक, जहाँ पे हमारे जो एक लीडर हैं वो डॉक्टर आलिया हैदर हैं, हु इज लीडर ऑफ द यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, हमारी पार्टी की हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, एंड शी विल वर्क विद देम टू सेट अप दिस क्लिनिक इन द कंस्टिट्यूंसी। अब अगर ये क्लिनिक बनता है जहाँ पे लोग रोज 300-400 लोग मुफ्त आते हैं चेकअप के लिए, और ये वो एरिया जिससे डॉक्टर्स कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, उनका जनरली बड़ा टेंस रिलेशनशिप है। डॉक्टर्स आपको तक बदनाम है पाकिस्तान में कि ये सही तरह बात नहीं करते। ना सिर्फ उनको वहाँ पे इज्जत मिलती है, बल्कि अगर कभी कभी ऑनलाइन कंसल्टेंसीज उनकी इधर भी हो जाती हैं डॉक्टर्स के साथ। This is a service most of them cannot even imagine. कि जी अमेरिकन डॉक्टर्स से भी उनकी बात हो रही है, उनको कंसल्टेंसी मिल रही है। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले हमारे कुछ लम्स के दोस्तों ने हमारी हल्के में एक चिराग घर के नाम से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, और वो भी कम्युनिटी के लिए बहुत एक्साइटिंग बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से, लम्स से, बाहर से पढ़े हुए लोग आके हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। और वहाँ पे कभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे बात हो रही है, सलमान अकरम राजा ने भी आके कोई लेक्चर दिया, उधर असद जमाल एक वकील हैं जो इनके थे वकील जुनेद हफीज़ के, उन्होंने भी आके लेक्चर दिया। सो हमारी प्रोग्रेसिव बात भी वहाँ पे हो रही है, और साथ ही साथ कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस हो रही है। उस तरह की जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, जो ब्राज़ील में लूला डी सिल्वा की पार्टी ने भी किया, जो वेनेजुएला में भी हुआ, जो जहाँ पे भी लेफ्ट रीएमर्ज कर रहा है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ, इन माय ओपिनियन, दीज 3 थिंग्स: अ कोर न्यूक्लियस ऑफ कमिटेड पीपल, a movement that inspires people, and an infrastructure that can sustain the movement. यहाँ की बात ऐड करूँगा, ये आइडिया जब लॉन्च किया था क्लिनिक का, तो आई थिंक वी हैव 20-25 डॉक्टर्स who used to do that. We are just asked them to just contribute $50 a month, and then clinic can run for over a year. I think within 3 days we got 25 doctors who
I mean, this is such a dynamic thing for these folks who are there. You cannot realize how much help that can do in a constituency. So, I mean, this is something open. I mean, we want more people to get involved in that, and we can introduce more services in that. I mean, even, I mean, consultant from here can do telemedicine. I mean, a curbside consult for these people, and that would really, with a good quality healthcare, and I mean, have a word out and a mouthpiece of the health party over there, mobilizing people over there. So this is something, I mean, the core thing we're working for, and I want everyone here to get involved in that project, you know. And we're thinking that, you know, we can have easily 100 doctors, 100 non-doctor physicians can take part in that. And it's a small amount, which is going to go a long way. Absolutely. For the party. I just want to add one thing. Maybe more than the amount, it gives us something to come together. Yes. The issue here, you know, that we learned from Burmese movement, that people giving $18 per, and there were $211 million that he collected from small dollar donations. So it gives you a reason to come together. And I think that is what is missing in the diaspora, that we have no organized infrastructure because there's no reason. So I would highly recommend everybody to think about participating in it. Not only this will give a soft look to KHALQ party, that they're doing service, but more that they are making people aware with that small amount. So please. The other thing that I would add is that there have been a lot of projects done by other people in our charity hospitals, in various parts of the country. What is lacking in those projects is a lack of politics. Yes, absolutely. Absolutely. There is no political message involved in their charity, Yes. which is basically nullified. Yes. So, अगर हम जो भी project करें, हम इसके साथ अगर हम अपना Yes. political project, आप अपने जिंदा भी कर रहे हैं, Yeah. यही political Good. message. Good. And then we have to बात पे कि our primary objective should be awareness. You know, primary objective should be कि भाई हम सबकी सेहत तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, but we are doing it because हुकूमत has faith. So this is the time for जो आपकी बात के जैसे मैं आपको बताऊं कि जब इस वक्त स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी, गाँव में जो कराची की बात की, लाहौर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, we had various projects that from Lahore Medical College, the students used to go in, you know, these slums and open clinics there. You know, it would be a temporary clinic, not established clinic. But then we would take our pamphlets and our, you know, banners and serve the community. Absolutely. So there's a big difference between charity and solidarity. और हम तो throughout ये कह रहे हैं कि this will be an act of solidarity with the community. कि हम ये resources लेकर आ रहे हैं in order to empower you, because these will not just be clinics but also sites for organizing around issues particularly relating to health and water and, you know, इस तरह की चीजें. और वही जो mix है of like political awareness and these kinds of institutions, ये सिर्फ लेफ्ट ने नहीं, राइट ने भी ये कुछ किया. जो मुस्लिम ब्रदरहुड का पूरा मॉडल ये था, सारा ये था कि उन्होंने जी सर. This is a great idea, and this is actually we have worked on it, और लेकिन ये एक बहुत slippery slope भी है, क्योंकि मैंने देखा है लेफ्ट जब इस तरह की एक्टिविटीज में engage होता है, you're talking about health, but it can go to other sectors too, and even health. मैंने देखा है मैं भी पॉलिटिकल काम जब वहाँ पे करते थे तो शुरू में तो स्टार्ट किसी स्कूल या किसी कम्युनिटी सेंटर से होता था, बट इट हैड अल्टीमेटली इट एंडेड अप इन ऑर्गेनाइजिंग ईद मिलाद नबी और ऑर्गेनाइजिंग कुर्बानी कैंपेन और इस तरह की चीज़ें जो कि I mean, we have to define कि हमें करना क्या है और किस तरीके से करना है. It's not just providing service and organizing people around that service, because जब demand होती है तो फिर हम लोग supply भी करते जाते हैं. And you know, people demand religion a lot. या अल्लाह मुझे भी हिदायत दे कि मैं इस तरफ जाऊं, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं है. ईद उल अज़हा में नहीं, अब नहीं है, but it goes out of control most of the time. You're right. No, I see. It cannot be completely managed by one person or a committee. When you just give it away to people
Nabis and everything. No, So you're absolutely right. this is, I've seen it, it has been done. I'm sure, and we no, just isolate ourselves from those. Absolutely. और इसमें जमात इस्लामी बहुत आगे है बहुत इससे आगे, आपको they just सीखना love, है। yeah. ऐसी है जो भी ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना पर्टिकुलर हेल्थ वाला, इसकी अगर लीडरशिप में जो इसको लीड कर रही हैं वो है डॉक्टर आलिया है, who is you know one of our most active members, but also the younger sister of Jalila. आपके साथ भी होंगी वो WDF. Jalila Haider, who is a very important Hazara activist. उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक भी की थी जब वो हजारा की देख रही थी, बड़ा फेमस था. Now, if the way अभी तनवीर साहब ने भी जो बात की, हैदर भाई ने बात की कि अगर उस तरह से कंसीव किया जाए that this be a party office, फिर पार्टी ऑफिस से अब उन लोगों को पता चल गया हम किस तरह के लोग, in the sense कि क्या वहाँ पे हो सकता है क्या, we are being defined as a certain kind of an ideology. हम कोई एंटी रिलीजन हम बातें उधर नहीं करते, ना हमें करने की जरूरत है, लेकिन ये क्लियर है कि ये रिलीजन के ऊपर कुछ उस तरह की चीज़ नहीं करना चाहते, सेकुलर पॉलिटिक्स इनकी है, और वो आई थिंक एक्सपेक्टेशन ही हमसे नहीं है, क्योंकि उसके लिए और इतनी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं कि हमसे हमारी जो यूनिक अगर कोई चीज़ आ रही है, ये आ रही है कि ये वो लोग हैं जो इश्यूज़ के ऊपर बात करें. एक तो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स भी जो सारे थे वो भी अब माशाल्लाह कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, फिर प्रोफेसर्स हैं, या भी इधर अमीन लुत्फी एक प्रोफेसर लाम्स में जिन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है एजुकेशन कैंपेन में. तो ये एक डिफरेंट किस्म के लोग हैं. एंड नाउ वी हैव दिस हेरिटेज एज वेल ऑफ अब्दुल रहमान जी, जिनको हमने बहुत ज़्यादा ओन किया है, who was a very important labor leader of this area, जिनको शहीद किया गया था 74 में. And we have associated ourselves with his movement, with his work, and personally I'm a big fan of his. So you're right. जो मुझे ज़्यादा उससे बड़ा डर है ना ईद मिलाद नबी इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा, वो है कि ये NGO नहीं बननी चाहिए. ये मेन, ये ज़्यादा बड़ा डर होता है. डर ये होता है कि वो डीपोलिटिसाइज हो जाता है. वो तो कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट जो NGO वाला प्रॉब्लम है ना, दैट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. एक, वो नीचे आंसरेबल नहीं होती लोगों को, वो डोनर्स को आंसरेबल. सो प्रोजेक्ट वाइज होता है, प्रोजेक्ट चल रहा है, जब तक काम हो रहा है, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, रैप अप किया. यू कैन नॉट डू पॉलिटिकल वर्क लाइक दैट, दैट इज सुसाइड फॉर पॉलिटिकल वर्क. इसलिए प्रोजेक्ट्स तो उसको NGO रजिस्टर कराना, प्रोजेक्ट्स करना, वो उससे तो 100 मील दूर रहना चाहिए. दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इवेंचुअली लोग डीपोलिटिसाइज हो जाते हैं, बिकॉज आप मूवमेंट नहीं कर रहे, लोग सिर्फ आपसे मांग रहे हैं, आप एक नया एवेन्यू उनकी भीख के लिए खोल रहे हो, rather than empowering them so that they can fight for their rights. And a clinic, which is also a political office, should ideally be geared towards mobilizing people. कि आपने इश्यूज के ऊपर मोबिलाइज करना है, इधर मीटिंग्स भी हो रही हैं, पानी के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, लेक्चर्स हो रही हैं. आप लोग में से कोई आता है लाहौर, तो डॉक्टर्स का लेक्चर हो रहा है उधर, पूरी कम्युनिटी की 50-100 औरतें हैं जिनको लेक्चर मिल रहा है किसी भी चीज़ पे, या हेपेटाइटिस पे अगर कोई बात हो रही है कम्युनिटी. सो where consciousness raising should be an issue rather than turning people into passive recipients. So yeah, I think, thank you for that question, but I think ये NGO वाला issue ज़्यादा है, and I think we have this clarity कि उस तरफ हमने इसको नहीं जाने देंगे. जी. मैं आखिर में बस बोलूँगा कि one of the main reasons that we are all here together is also the Amar talk and Heather talk. We should form some kind of a concrete forum here where everybody should regularly participate. If not in person, बहुत avenues हैं जिससे हम participate कर सकते हैं, and we should have events throughout the year. और अभी उमर से भी आज बात हो रही थी कि we should have our voice heard through statements. We should own our statement. We should be ready to argue about our statements. तो ये एक चीज़ मेरा
government today, by the end, we should be able to come to some kind of a conclusion. And that would be regardless of any party politics. ये expats की progressive forum होना ये आप चाहिए. दोनों मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, वो पार्टी की बात कर रहे हैं, हुकूक खल्क पार्टी। आप बात कर रहे हैं कि कॉमन प्लेटफॉर्म। मैं इन दोनों की बातों में जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि हम लोग जिस ज़माने में रह रहे हैं ना, जिस ज़माने में इतनी गुर्बत है, पाकिस्तान के अंदर हो के आए हम, उसके अंदर वो डायर नीड वाली बात है कि लेफ्ट बहुत अच्छा समझाता है सब क्यों है गुर्बत, लेकिन जब किसी को शाम खाने की रोटी पे पैसे नहीं है, दवा का पैसा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो ऐसी चीज़ें सबकी हाथ करती हैं। जो देगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो देगा उसके पीछे लग जाएगा तो वोट कर देगा। इस डायर सूरत हाल के अंदर जो लोगों ने तदरीज फेलियर देखे, पीपल्स पार्टी के हवाले से फेलियर देखे, उन्होंने 4 बार इलेक्ट किया, चोरी का मकान, उसके बाद अल्लाह वालों के नाम पे फेलियर देखा, उसके बाद अब जितने वो तो कोई और एवेन्यू नहीं छोड़ रखा है ब्रांड डिलीवर करेगा, उसके पीछे वो लग जाए। मतलब मैं समझता हूँ इन तमाम छोटी चीज़ों को करने के लिए, जैसे चाहे ये छोटा काम हो या कोई भी काम हो, एक ग्रैंड नैरेटिव बड़ा जरूरी है। जब तक कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं होगा ना, जिसके अंदर हम ये बता सकें कि अगर आप वोट करेंगे, हमें पाकिस्तान राइट विंग जो बैटिंग क्रिएट हो रहा है हमको पता है, जिसको राइट विंग ले सकता है, तो आप पाकिस्तान ऐसे तो नहीं रुकेंगे कि सऊदी अरब सामने है और यहाँ पे जो है वो एक और मुसलमान आप ग्रो करते हैं, आपकी इकॉनमी नहीं ग्रो कर सकती। आपको ग्रैंड नैरेटिव चाहिए कि कैसे लेफ्ट आपको, कैसे एक इंसान को उसको अच्छी शाम की रोटी हम लेफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन ए ग्लोबल लेवल, ऑन ए नेशनल लेवल, ऑन ए कम्युनिटी लेवल। फिर उसके बाद ये काम अगर ग्रैंड नैरेटिव के अंदर होता है तो फिर उसकी एक रेलेवेंस बनती है। तो हम ये बहस नहीं कर रहे हैं कि ये कैसे कोई इसको लेगा, NGO होगी कि नहीं होगी, मैं सारे वो ग्रैंड नैरेटिव, देखिए इमरान में बड़े बड़े नैरेटिव चला रहा होता है, लेफ्ट के लोग तो बहुत अच्छा नैरेटिव बना सकते हैं पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर। तो यहाँ मैं दोनों को जोड़ूंगा। यहाँ से एक सवाल था पहले जी, एमर साहब। You started off with political problems, focus on social problems. The local government, I think these problems are local. Absolutely. These are sand का problem, food, education का problem. अब एक party आती है and then you start again from the top. Yeah. Why don't you build from the grassroots, from the local level? लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम क्यों नहीं आपको? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। हम MPA को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को करवा रहे नहीं है पंजाब में। सो पहले MP, अब तो खैर नहीं पता MPA का कराते हैं नहीं करते इलेक्शंस का, तो सब नोस, बट अब तो हम काम कर रहे हैं कि एरिया में ग्रास रूट्स का काम कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट में आई थिंक वी आर इन अ पोजिशन, एंड बाय वी आई मीन नॉट जस्ट अगर लेफ्ट करें, जो कि यू सून हियर सम गुड न्यूज़ रिगार्डिंग दैट। इस वक्त पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट में वी कैन बी द 3rd बिगेस्ट फोर्स, नून लीग PTI के बाद। वी कैन बी बिगर देन पीपल्स पार्टी, और ये तो क्योंकि माई फैमिली इज इन पीपल्स पार्टी, मैं जानता हूँ उनकी क्या हालत है। लबैक बहुत डाउन फॉल चल रहा है। उसके बाद खादिम रिजवी के बाद, खादिम रिजवी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, 7 से संभाला नहीं जा रहा, और उनका आप देखेंगे वोट 35 तक रहा, इसलिए वो उन्होंने जो लास्ट हैंडी खाई है उसके बाद दे नॉट वेरी एक्टिव। और अगर एस्टैब्लिशमेंट उन्हें किसी तरह इस तरफ लेकर जाए तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि लोकल इश्यूज़ के अंदर, जब लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपके इश्यूज़ लोकल ज़्यादा होते हैं, फिर ये पानी वाला, स्कूल वाला, गैस वाला, बिजली, ये मसले सेंट्रल हो जाते हैं। मतलब बैक उन इश्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं बिल्कुल। पीपल्स पार्टी इज़ फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू मेक अ कम बैक इन सेंट्रल पंजाब, और वो भी अभी तो नहीं होगा। नून लीग PTI एक्चुअली हम नहीं कह रहे कि अभी हम उनको हराने की पोजीशन में आएंगे, लेकिन हम 3rd की पोजीशन पे आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर अगर लोकल गवर्नमेंट कराते हैं, विच इज़ वाई जो इस वक्त मेरा अपना भी ऑब्सेशन है, और बाकी लोगों को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस अपने ऑब्सेशन में फंसा लूँ, वो यही है लोकल गवर्नमेंट, कि अगर उसके ऊपर सेंट्रल पंजाब में अगर हम फोकस करें, जो सेंट्रल पंजाब के इस वक्त बुरे हालात हैं, और जितनी वहाँ पे मायूसी है नून लीग के हवाले से, बिकॉज अ लॉट ऑफ नून लीग सपोर्टर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द पार्टी, PTI वाले भी टूटेंगे एट सम पॉइंट,
एक बड़ी ओपनिंग आएगी डेंट मारने के लिए। और अगर आपके लोग इलेक्ट हो जाते हैं, काउंसलर, चेयरमैन, you then are in a position in a number of constituencies to do well for the people, to actually do service delivery, even without too much outside support. I have a question. Actually, my question is two parts. पहला तो ये कि आप बात कर रहे हैं पंजाब की, सेंट्रल पंजाब. पंजाब is still much better than Sindh, बलूचिस्तान और बाकी एरियाज से. उनमें ठीक है, आबादी ज़्यादा है, सब कुछ है. तो क्यों हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करें किसी और जगह पे जहाँ पे हमें ज़्यादा हम लोग प्रोएक्टिवली काम कर सकते हैं. लाइक बलूचिस्तान फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे पानी नहीं है, गैस वहाँ निकलती है लेकिन उनको नहीं मिलती, बाकी सबको मिलती है. तो वो ऑलरेडी प्राइम है, दे आर ऑलरेडी रेडी फॉर अ चेंज, फॉर रेवोल्यूशन. पंजाब की आई बिलोंग टू झंग, तो झंग की मुझे पता है कि एक सिंह और झंग वहाँ जो जिम्मेदार है, मैंने वहाँ पे गाँव में काम किया. अगर आपने यहाँ पे टीवी लगा कर लोगों को खबरें सुनानी शुरू कर दी तो आपकी जान खबर है. तो we are fighting an uphill battle in Punjab in a way. Why not in Sindh? Why not in Balochistan? Definitely you guys must have done your homework, so I'm not challenging them. I'm just trying to understand. दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि बीइंग अ डॉक्टर, जब हम किसी कैंसर या किसी बड़ी बीमारी को देखते हैं तो बैंड एड ट्रीटमेंट नहीं होती है. You have to find the cause, and you have to go after the cause. जो साइड फैक्टर्स हैं उनको दूर करें तो शायद हम पेशेंट को बचा सकते हैं. तो व्हाट साउंड्स लाइक डिस्कशन हम पहले भी कर चुके इस मौजूद पे, और सारा कुछ अभी हम जो वी आर स्टक इन द पानी और इस सब के चक्कर में फंसे हुए, हम वी आर बैंड एड ट्रीटिंग. तो डेफिनेटली पार्टी शुड हैव डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट लेवल्स. एक ठीक है, हमें पानी फिक्स करना है, दूसरा पॉलिटिकल लेवल पे ऊपर जाना है. तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लोकल बॉडीज में हम जाएंगे और वहाँ पर कोई मिसाली गांव करार दे दें किसी एक जगह को और उसको प्रोजेक्ट करें कि देखो ये हम कर सकते हैं, now that we spread our energy all over and end up like just another party. That's how you will go. With example. Absolutely. No, I completely agree. My second वाले question से अगर आपका start करूँ, I think that's how we have planned to start. ये जो एक एरिया में हम काम कर रहे हैं, अब इस एरिया में वोटर्स हैं 1,92,000, so 1,92,000, which means that the population is about 7 lakh. ठीक है, तो उतनी नॉन वोटर्स हैं, फिर बच्चे मिला के तकरीबन 6.5-7 लाख की पॉपुलेशन. और वहाँ पे ऑलमोस्ट अब हर कोई हमें जानता है इस सारे अरसे. ये जो पिछले 4-5 महीने में हमने ज़्यादा काम किया है ना, तो उसकी वजह से एक नाम बन गया है, एक काम नजर आ रहा है. Which at the macro level is still very small. 6-7 लाख पाकिस्तान के अंदर छोटा है, but it's a good start कि एक लोकल हमारी पावर बेस लाहौर जैसे शहर में बन गई है. और लोकल ही से हम कर सकते हैं जो उमर भी अभी बात कर रहे थे कि जो ग्रैंड नैरेटिव है, लेफ्ट का ग्रैंड नैरेटिव मौजूद है और काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको वो इमेजिनेशन इसलिए नहीं कैप्चर करता क्योंकि लोगों को ये लगता है, मेरे नज़दीक जब हम जाके शुरू में इसी इलाके में बात कर रहे थे, वो ये नहीं कहते कि आप लोग गलत हैं, वो कहते हैं कि आप लोग जीतेंगे. तो ये जीतेंगे नहीं, right? Which is something that was a problem for leftists in the US as well. Bernie is the first guy जिसे थोड़ा बहुत उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके खिलाफ भी यही बात हुई eventually कि ये winning नहीं है, लेकिन he came back close. The problem is hopelessness. कि यार जो ये शरीफ बंदा है, कोई भी अब वो इलेक्शन लड़ा था, जिब्रान ने भी लड़ा, अमार रशीद ने लड़ा, इस्मत ने लड़ा, और उनको there were very few people जो हल्के में कहते थे लोग अच्छे नहीं. वोट किसी को 300, किसी को 500, किसी को 2,000, किसी को 2500. We have to break that hopelessness. There's a chain of hopelessness और उसमें एक weak link हमें create करना पड़ेगा. And that weak link has to be, जिसको पुराने ज़माने में बेस एरिया कहते थे, कोई एक एरिया जहाँ पे आप होप का सेंटर बना दो कि नहीं, it is doable, it is possible, the impossible is possible. And that area we've decided because of different contingent reasons that this area can be that area.
we showed the whole of Pakistan कि यार ये एक इलेक्शन हमने लड़ा, and if we don't win, we're going for winning. We don't win, we get 10, 15, 20,000 votes, and we say कि यार ये 15-20 हज़ार ने अगर वोट डाल दिया, इसका मतलब है कई और हज़ार वोट डाल देते अगर उन्हें होता कि ये वाकई विनिंग कैंडिडेट है, which means कि our narrative can actually get people support, actual support, voting support भी मिल सकती है, और ये आम आदमी पार्टी ने भी अभी पंजाब में करके दिखाया है, दिल्ली में करके दिखाया है. So that will then allow us to move up the scale. कि एक एरिया को आप center of hope बनाओ, you show that the impossible is possible, and then you say now we can talk to the rest of Pakistan. जो आपका दूसरा वाला सवाल है पंजाब और बाकी, वे बेस्ड इन पंजाब. मैंने मिसालों में पीटीएम से मैं बहुत क्लोज रहा ज़ाती तौर. कल मैंने कुछ स्टोरीज भी सुनाई हैं जो मुझे घर से उठा के ले गए थे, वो पीटीएम की वजह से उठा के लेके गए थे, और एजेंसी ने जो इंटरोगेशन की थी वो पूरी उन्होंने पहले 5-10 मिनट की इंटरोगेशन में ये कह रहे थे कि आप पश्तून हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, ये हैं, आपको क्या मसला है पाकिस्तान से. तो मुझे पहले समझ नहीं आया, जब समझ आई तो मैं क्या पश्तून, मैं तो जट हूँ. उनको यानी उनको ये भी नहीं पता था कि जिसको उठा के लेके जा रहे हैं वो पश्तून है या पंजाबी है या क्या है, बट इट्स बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू देम. तो वो है ना कि बजाय काम चोर है सारी जिस तरह पूरे पाकिस्तान में, तो वो एजेंसी वाले बेचारे. So we've worked very closely with Manzoor is a very good friend, Mohsin Dawar is a very good friend. बलोच का भी मैंने आपको बताया, मरीम नवाज, और जब भी बलोच आते हैं लाहौर में स्टूडेंट्स, तो उसमें एनएसएफ वाले भी बहुत एक्टिव होते हैं, हम भी बहुत एक्टिव होते हैं और उनके साथ सॉलिडारिटी करने में. But we cannot fight their fights. Like मैं अगर बलूचिस्तान जाऊँ, बलूचिस्तान वालों को या बलोचों को आज़ाद कराने या फाटा जाऊँ, वो it won't work. उधर मंजूर है, इधर BSO है, इधर और तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, सिंध में बहुत अच्छी तंजीमें काम कर रही हैं. We express solidarity with them. We whenever something, वो मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के लिए गोट तबाह किए थे उधर आउटस्कर्ट्स पे कराची के, तो हमने लाहौर में उनके लिए मुजाहरा किया था. हम ये कर सकते हैं, हम उधर जाके अब करेंगे तो वो फिर बात नहीं बनेगी. What we can do is we can build a base in Punjab and then show solidarity with the rest of Pakistan. और लाहौर में टोबे आके आप ध्यान से, टोबे में मैंने काफ़ी काम किया. टोबे में, फैसलाबाद में बहुत बड़ी ओपनिंग है. सबसे बड़ी जो इस वक्त वर्कर्स मूवमेंट है इन फैसलाबाद, जिसको लेबर कौमी मूवमेंट के नाम से वो है, उनके जो चेयरमैन है वो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट है पार्टी के, और वो बहुत वह हजारों वर्कर निकलता है. लेबर कौमी मूवमेंट, बाबा लतीफ अंसारी, बिल्कुल. तो वहाँ पे अब वो पुराने स्ट्रक्चर्स हर जगह नहीं रहे, खासतौर पे शहरों में. ना फैसलाबाद में आप देखें पीटीआई ने भी यंग लड़कों को खड़ा किया, वो भी जीत गए. जी लालपुर हाँ. लेकिन लाइल भी तो गोरा है सी ना, लेकिन लाइल तो गोरा है सी, लाइल गोरा है सी. Just to piggyback on that, जो रज़ा ने अभी कहा था कि थोड़ा सा अगर आप हमें landscape पाकिस्तान का, because interestingly enough around this table we are both of us are actually graduates. तो वो जो बाकी मुल्क का जो landscape आपने थोड़ा सा जो अभी टच किया उसको जरा थोड़ा expand करें. मूवमेंट्स के हवाले से जी, पंजाब से अगर मैं स्टार्ट करूं, लाहौर में ये ज़्यादा जो लेफ्ट का काम हो रहा है वो कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है हमारी, उसमें तैमूर भी आ रहे हैं, उसमें AWP वाले साथी भी आ रहे हैं, बाकी पार्टीज के लोग भी आ रहे हैं, और NSF का भी काम हो रहा है जो गुलाबी पार्टी के साथ हैं, वो लोग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. फैसलाबाद इज वेरी इंटरेस्टिंग. फैसलाबाद खत्म हो गया आज से, आदत गंदी आदत है सर जी, वो पूरे पाक सिटीज का कमाल. लालपुर इंशाल्लाह. हाँ, लालपुर में बहुत बड़ी मूवमेंट है. उस पे मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ. लाइल इज अ वाइट गाय, लाइल गोरा है.
चले अब ये लड़ाई तो हाँ जी मुझे तो लालपुर को पता है लास्ट क्योंकि नया शहर है ब्रिटिश का शहर है जी तो उससे पहले तो हाँ बहरहाल उस शहर की बड़ी बात ये कि वहाँ वर्कर हाँ एक ही इसका which cannot be named और वहाँ की जो मूवमेंट है हजारों वर्कर निकलते हैं एक कॉल पे और ये इसका आपको बताऊं LQM ने 2010 में एक की थी हड़ताल उस मियां पियूम होते थे उनके लीडर वो भी फौत हो गए पिछले दिनों 2 साल पहले फौत है एक दिन की हड़ताल में लाख लोग आए थे नुसरत जावेद वगैरह भी गए और उन्होंने भी इंटरव्यू किया वर्कर्स का और उसके बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी एंटी टेरर कोर्ट्स ने उम्र कैद सुनाई वर्कर्स ने फॉर वन डे स्ट्राइक फॉर मिनिमम वेज और वो 5 साल जेल रह के 2015 में वो निकले एंड येट द मूवमेंट कंटिन्यूज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने अपना एक अमन घर के नाम से एक बड़ा दफ्तर बनाया हुआ है बल्कि मैं चाहूँगा मैं बाबर लतीफ़ अंसारी से आप लोग की 1-2 दफ़ा जूम पे मीटिंग हुई है उनसे आप कभी बात करें उनको अपना उन पे काफलाना हमला हुआ सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग मूवमेंट इसी तरह टोबा टेक सिंह में वहाँ पे नौजवानों की बड़ा एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे भट्टा मजदूर जो हैं बहुत बड़ी बात मेन जो भट्टा मजदूरों का इस वक्त यूनियन है वो टोबे में काम कर रही है बुकला में कुछ बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेसिव बुकला बैठे हुए हैं तो आप पंजाब में इंटरेस्टिंग बात ये कि जिन्हें हम स्मॉल टाउन्स कहते थे पाकपतन साहिबाल सियालकोट जगह जगह आपको नई प्रोफेशनल क्लासेस मिलेंगी जो कि लोअर मिडिल क्लास से ऊपर अपवर्ड मोबिलिटी उनकी हुई है लेट्स से कोई छोटा किसान का बेटा है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी आके वकील बन गया और फिर जब वो वापस गया है पाकपतन गया है मैं लालपुर आ रहा था मेरे जहन में लालपुर गया है या सियालकोट गया है कहीं पे भी वहाँ ही बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पर्सन और वो वापस आप जी बात ये मैं अभी लालपुर का कोई नहीं वही काम किया ये जो आप पिक्चर बता रहे हैं ये दुरुस्त नहीं वुड यू बिलीव लालपुर में कहीं इकट्ठे होकर बैठने की जगह कोई बाकी नहीं है जब रात को दुकानें बंद हो जाती हैं तो के छोटे मोटे लोग 8:30 के बाद कहीं पे चाय पी सकते हैं आप मुझे बता रहे हैं बहुत बड़ी मूवमेंट है सारी उम्र में ही काम किया पहले होगा आई डोंट चैलेंज कि पहले ऐसे ही होगा इस वक्त जो सिचुएशन है अगर आप लेबर का मूवमेंट आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा तो वो वही ना तो आप ही उनके बारे में बता दें सबको वो कैसी मूवमेंट चिन्योट में बहुत अच्छा है वो तो शौकत चौधरी वाला है लेकिन वो भी अच्छा है और अगर